پاکستان کے آئین سے انحراف کیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 سے انحراف کیا ہے۔ اور میں آج بہت مختصر بات کروں گا، اور میں مختصر بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کھڑے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہماری جماعت ہے، جس کو ہم نے بنایا، میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، اور یہ بات متعدد فیصلوں میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگ، ایسے اشخاص جو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر جو ہے یہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ورکر ہیں جماعتوں کے، چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اس لیے ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں آئیں۔ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز اور قومی الیکشنز یہ لازم الملزوم ہیں۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور ہر پارٹی کے ورکروں کی مرضی کے مطابق قیادت سامنے نہیں آئے گی، تو وہ جو قومی الیکشن ہوں گے اس میں عوام کی نمائندگی اس لیے نہیں ہوگی اور ان کے بنیادی حق سے محروم ہوں گے کیونکہ ان کی مرضی کی قیادت قومی الیکشن میں نمائندگی نہیں کر سکتی۔ الیکشن میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم جو یہ کر رہے ہیں، یہ ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے، جو قانونی اہمیت ہے، جو آئینی اہمیت ہے، جو سیاسی اہمیت ہے، جو جمہوریت کے لحاظ سے اہمیت ہے، آج ہم اس کو پہلی دفعہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں کامیاب نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت کیوں عوام کے مسائل حل نہیں کرتی، پاکستان کی جمہوریت کیوں ایک بہتر قیادت، باصلاحیت قیادت سامنے نہیں لاتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں جو قومی الیکشن ہے اس میں وہی قیادت ری سائیکل ہوتی ہے جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کمپٹنس کی کمی نہیں ہے۔ آپ جب تک اس کمپٹنس اور اس کمپٹنٹ قیادت کو سامنے نہیں آنے دیں گے، وہ قومی سطح پہ کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز آئینی طور پہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جیسے کہ قومی الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈینائی کیا گیا، سلب کیا گیا، جو ہم سب لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکروں سے کیا گیا ہے، اور آج آپ نے جو صحافی موجود تھے وہ خود ہی یہ دیکھ لیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، وہ ہم سے وہ حق سلب کیا گیا۔ جب تک قومی الیکشن جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، ان دونوں کو ایک تصویر میں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹریجڈی ہے کہ میں بانی رکن ہوں، یہاں اور بھی بانی رکن ہیں اور ممبران بھی ہیں۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کی جماعت بنائی تھی۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا تھا کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہم آئین اور قانون کے علمبردار ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا تھا جو کہ دوسری جماعتوں کی مجبوری بن جاتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جب ہم نے عوام کے سامنے اس کی برانڈنگ کر لی کہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے، اس وقت اس کو اے ٹی ایمز کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کے بعد اجرتی سیاستدانوں نے لوٹا، اس کے بعد پارٹی کے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے انہوں نے اس کو لوٹا۔ آج ایک وکلا کا چھوٹا سا گروپ ہے، بڑا ان پروفیشنل، آج وہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم پارٹی کے ورکروں کو ان کا حقوق دلا کے رہیں گے۔ یہ جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، جو آج بھی بندربان شروع ہے، پارٹی کے ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں،
आपस में तकसीम कर रहे हैं। ये वर्करों का हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे और वो क़यादत जो है फिर इलेक्शन में आए। इसलिए हम ये जंग जो है ये इंशाल्लाह हर फोरम पे यहाँ और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है जो हम लड़ रहे हैं। बरतानिया में जमहूरियत कामयाब इसी वास्ते है कि वहाँ की सियासी जमातें अपने वर्कर के ताबे होती हैं, क़यादत का इंतखाब उनके वर्कर करते हैं। इसीलिए इंडियन निज़ाद जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसीलिए वहाँ एक पाकिस्तानी निज़ाद मेयर बनता है लंदन का। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ने कहते हैं कि हम सबसे बड़ी जमात है, उनका कहाँ है वोटर, उनको क्यों उस हक से महरूम रखा गया? ये बुनियादी सवाल है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पे कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत इस वजह से पनप नहीं सकी कि पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हो सके और इसी वजह से मुल्क में जमहूरियत डीरेल होती रही और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग या फौजी डिक्टेटर हुकूमत में आते रहे। फौजियों के आने की बुनियादी वजह यह है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए सियासी जमातों में। नहीं, मैं इस्लाह कर दूँ। देखिए ये जो बहस है कि कौन जिम्मेदार है कि जमहूरियत कामयाब नहीं हुई, मैं उस पर बड़ा मुख्तसर आपको जवाब देता हूँ। वो जवाब ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है और जो सियासी इदारे हैं और जो सिविलियन क़यादत है वो सियासी जमातों को महज एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार में। जमहूरियत उसी सूरत में जड़ें पकड़ेगी और जमहूरियत का दिफा पाकिस्तानी अवाम करेंगे जब भी मौका मिले। आप परफॉर्म करें। मैं ये कहता हूँ कि जब भी सियासी जमातों को इक़्तिदार मिले जमहूरियत के तहत वो परफॉर्म करें। वो परफॉर्म नहीं करते जिससे जड़ें कमज़ोर होती हैं और गैर जमहूरी क़ुव्वतें मजबूत होती है। ये मेरा रवैया। सर आपने कहा है कि वुकला ने पीटीआई के ऊपर कब्जा कर लिया है। मुश्किल तरीन हालात में भी वो पीटीआई के साथ खड़े नजर आए, आप उस वक्त पास नहीं थे। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आप भी पीटीआई की मकबूलियत को देख के दोबारा कब्जा करना चाह रहे हैं? कानून के दायरे में गैर कानूनी काम। मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ। इस पार्टी को बनाने वाले चंद लोग थे जिसमें पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान भी थे। हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमने एक इंतहाई मुश्किल वक्त गुजारा। 2011 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टांगा पार्टी कहा जाता था। उस वक्त तक हमें कोई हमारी सियासी हैसियत नहीं थी। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया, मैं और मेरे साथ एक और होता था, आज मुझे मौका दे, वो अरशद मलिक था, वो भी एक सहाफ़ी था। हम दो ने मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया सारी चलाई, ब्रांडिंग की। क्या पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया के जरिए बनी है? एक मिनट, क्या वो ये नहीं कहते कि ये तमाम जो हमारी जमात जो ग्राउंड फ्लोर सपोर्ट हुई? अब आपने बात की, मैं मुश्किल तरीन वक्त का साथी हूँ, लेकिन मैं गैर कानूनी गैर आइनी कब्जे के खिलाफ रहा हूँ। मैंने ATMs की मुखालफत की, उजरती सियासतदानों की मुखालफत की। आज ये वकला जिनमें से जो पार्टी के जो नाम नहाद चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं फाउंडिंग, ये जुमा 8 दिन में वो पार्टी में आए हैं। इनको क्या हक पहुँचता है कि ये पार्टी के भाग दौड़ संभाले? इनको क्या हक पहुँचता है कि ये पार्टी के फैसले करे? इनको क्या हक पहुँचता है कि ये पार्टी के टिकट दे और साथ साथ ये गैर कानूनी काम करे? ये जो PTI का इलेक्शन हुआ है ये एक लगता है कि बंद कमरे में एक कंप्यूटर में बैठ के इलेक्शन हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। गौहर साहब ने कहा है कि जो 14 के 14 जो दरखास्त गुजार हैं PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो आए हैं वो सारे लोग प्लांटेड हैं, तो किसने प्लांट किया आपको? देखिए, मैं 1996 से प्लांट हुआ हूँ, अब मैं तनावर दरख्त हूँ। अपनी बात करें, उनसे पूछे अपनी बात करो कि आप कहाँ से आए हो, किस मकसद के आए हो, आपकी ओरिजिनल जमात कौन सी थी? आप मुझे बताइए ना। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप पूछना चाहते हैं? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज अजीब बात है कि ऐसे भी चंद वकला हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब मेरे बारे में कहते हैं कि बाबर को चाहिए कि अब वो घर बैठ जाए।
ये उनका बयान आया है। अब एतजाज़ एहसन साहब ज़िंदगी के उस हिस्से पे हैं कि उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसीलिए मैं मनाता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी की सबसे बड़े नकाद हैं, और मुझे कहते हैं कि पीटीआई से आप जो ये तनकीद करें आप घर बैठ जाएं। वो एक बड़े वकील हैं, उनके सामने क्या तमाम फैसले नहीं मौजूद, क्या तमाम हक़ाइक़ नहीं मौजूद? तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि मुझे वो कहते हैं कि अब वो बैठ जाए, जबकि वो खुद अभी तक नहीं बैठे। आप पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातों को जानते हैं जिनके अंदर जमहूरियत है? और सर आपके से सवाल है अजीज़ुद्दीन काकर खेल साहब के जानिबदार वफाकी वज़रा का केस फैसला महफूज है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान के सियासी उसमें एक ही जमात है, जमात इस्लामी, जिसमें इलेक्शंस होते हैं उनके अपने कवानीन के मुताबिक, लेकिन एक जमहूरी तरीके से उनकी क़यादत सामने आती है। इसके अलावा कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो जमहूरी बुनियादों पर मुनज़्ज़म है। एक मिनट मैं ये एक वजाहत करना चाहता हूँ। जो अभी सहाफ़ी भाई ने पूछा कि जो है ना इन प्लांटेड लोग हैं, इन सब 14 पिटिशनर के अगर आप पिटीशन उठाकर देखें तो ये सारे 7, 8, 10 साल 15 साल पुराने पीटीआई वर्कर्स हैं। और जो चेयरमैन जो है उसने 2018 में पीपल पार्टी की प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़ा है, और उसके बाद जो है ना उसने पीटीआई को ज्वाइन किया है। और दूसरी बात ये कि एक भाई ने ये पूछा कि जो जजमेंट रिजल्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट है, हालांकि उसका भी फैसला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद वो इनफ्रुक्चुअस हो जाए। तो मेरी कमीशन से रिक्वेस्ट है कि उस पर भी अगर फैसला आ जाए तो बेहतर होगा। पीटीआई का वोटर मेरे साथ है, पीटीआई का वर्कर मेरे साथ है, और मेरे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीटीआई वर्कर भी आपको मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो जहाँ तक दूसरी जमातों का ताल्लुक है, देखिए दूसरी जमातें इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगी जब हम ये कह रहे हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तमाम सियासी जमातों को होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इस जमहूरी अमल से गुजरना चाहिए। ये एक फंडामेंटल बुनियादी हक है आईनी हर पार्टी के मेंबर को, पाकिस्तानी शहरी को। तभी जाके आप वो जो दूसरा आईनी हक है कौमी इलेक्शन का, उसमें कोई ऐसी क़यादत सामने आए जो हमारे मसाइल का हल करे। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई ने खुद मौका दिया है, पीटीआई ने अपने जो खामियाँ हैं उससे मौका मिलता है अपने सियासी मुखालफिन को वो फ़ायदा उठाए। अब क्यों ऐसे बॉन्डे इलेक्शन कराते हैं? अब क्यों नहीं अपने कॉल पे फेल में तजाज रखते? अब क्यों नहीं आवाम के सामने सच बोलते? अब क्यों नहीं वो काम करते जिसका आपने कौम से वादा किया था? क्या आपको याद नहीं है 30 अक्टूबर 2011 को कौम से क्या वादा हमने किया था कि हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे? याद है आपको? आप मुझे बताइए कि आज तक कौन सा अहद वफा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? कौन सा अहद जो वर्करों से किया उसको वफा किए? कौन सा अहद है जो आवाम से वादा किया था पूरा किया? अगर नहीं किया तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे एक बादशाहत है, और यहाँ पे ये सियासी जमात जो है ये सिर्फ चंद लोगों के कब्जे में है जो बदलते रहते हैं और जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये वो 2 साल से पीटीआई के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा मैं इलेक्शन कमीशन में जुलूस लेके नहीं आता, मैं आपको वर्कर कन्वेंशन करके दिखाऊंगा।